بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم سر. ایسا بیٹا کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے اللہ کا جی شکر ہے اللہ سر. کا شکر ہے سر. اٹینڈنس شروع کرتے ہیں بیٹا. عبد القدیر Present, sir. عابدہ نور Present, sir. عادل احمد پریزنٹ سر. عائزہ حسن Present, sir. افروز فاطمہ Present, sir. محمد رضا احمد عتیق Present, sir. عائزہ بطول اجمل خان Present, sir. علی حمزہ علی رضا Present, sir. عماد حسن Present, sir. امان اللہ خان انس احمد انیب علی انیس ضیاء اینا احسن Present, sir. انم جنید Present, sir. اقدس مشتاق Present. اقصی ارشد Present, sir. اریبہ عباس اریبہ احسن Present, sir. عریشہ سیان اسد ملک اسد ذاکر عتیق Present, حسین sir. Asad Zakir, سر present. اسد ملک پریزنٹ. اوکے اسد ملک اور اسد ذاکر دونوں پریزنٹ ہیں. عتیق حسین جی سر. پریزنٹ سر. اویس مظہر اسکا فاروق Present, sir. بشیر احمد Present, sir. دانش وسیم دانیال حسن Present, sir. دور Daniel Hassan. دور عدن عماد الدین فائق عامر Present, sir. فہیم حیدر Present, sir. فروا سہیل غلام رسول Present, sir. حافظ عبد الباسط حامد اقبال ہبہ Present, خان ہبہ خان اقرا خالد Present, sir. ہبہ خان نہیں ہے. جہاں زیب حسن Present, sir. جویریہ نوید Present, sir. جنید جمشید لائبہ ندیم Present, sir. محم قدیر محم شبیر Present, sir. ماہنور Present, sir. ماہنور عیار معرف رضا Present, sir. مروہ مسعود Present, sir. مناہل منیر موری Present, سیسا sir. معین اختر Present, sir. محمد حسن Yes, sir. محمد عمر عباس بدینی Present, sir. محمد احمد Present. عمار حیدر انس ملک انیب الطاف Present, sir. فاروق خالد محمد حمزہ فاروقی Present, sir. حمزہ منیب خالد Present, sir. محمد ثاقب جہاں زیب خان Yes, sir. محمد عمیر عمر جاوید
Munib Rahman. Mujibur Rahman. Present, sir. Munib Ahmad. Present, sir. Present, sir. Okay. Nasibullah. ٹھیک ہے. نیہا منور. نیہا بیٹا نہیں ہے. ندا فاطمہ. Present, sir. رفیع اللہ. Present, sir. راشد علی آئر. راشد علی آئر. راشد علی پولیٹیکل سائنس. present sir. ریمل اسلم. ریمل بیٹا. رحمت اللہ. سعد فرید. Present, sir. سعد فرید. Present. اوکے. صفدر نصر اللہ. صفدر نصر اللہ. سید الخان. Present, sir. سمرا ریاض. Present, sir. شمشا بٹ. شمشا بٹ. شان علی. Present, sir. شرمین عمران. شرمین عمران. شیان صدیق. Present, sir. شہریار فضل. شہریار. Present, sir. Shahryar. ٹھیک ہے. اوکے بیٹا. شہریار. Present, sir. شمائلہ شاہین. سبحان احمد. Present. اوکے بیٹا. سبحان احمد. sir. سلیمان عابد. sir. سلیمان عابد. سید ذاکر حسین. طاہر زمان. تیمور بن سعید. Present. اوکے. تیمور بن سعید. sir. Present, sir. اوکے. طیب حسین. عمر دراز. Present, sir. عمر افتخار. Present, sir. عمر شاہد. ہبا خان. عمر شاہد کے بعد ہیں زینب خان. Present, sir. زرق شفیق. زہا زنجبیل. Sir, Zirak جنہوں نے- Shafiq, present. ایک سیکنڈ بیٹا. جن لوگوں نے لیٹ جوائن کیا میں ذرا ان کی اٹینڈنس کال کر دوں دوبارہ سے. اگر وہ آئے ہیں تو ان کی اٹینڈنس ہو جائے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی ہماری شارٹ اٹینڈنس کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہے، اور جن لوگوں کی 70% سے کم ہوئی اٹینڈنس ان کو یونیورسٹی نے شارٹ آف اٹینڈنس ڈکلیئر کر دینا ہے. عائزہ بطول. امان اللہ خان. عریشہ سیان. Present, sir. عریشہ سیان. اوکے. دانش وسیم. درے عدن. عماد الدین. Present, sir. درے عدن اور عماد الدین. اوکے. ہبا خان. جنید جمشید. جنید جمشید. ماہنور آیار. موری سیسا. عمار حیدر. محمد حمزہ. حمزہ منیر. Sir, Mohammed Hamza. محمد حمزہ. اوکے. حمزہ منیر اور راشد علی آیار. Yes sir. Yes sir. اوکے. اوکے. اس کے بعد صفدر نصر اللہ. شان علی. شرمین عمران. Present. Present. اوکے. Shameen, present. اوکے بیٹا. سلیمان عابد. سید ذاکر حسین. عمر شاہد. اوکے گائز. Sir, Hiba Khan, present. شاید آپ کو میری آواز نہیں آئی. بیٹا ہو گیا تو میرا خیال ہے آپ کا. اوکے گائز. لاسٹ کلاس میں we were talking about the کی بھی اٹینڈنس لگا دے. کس کی لگا دوں بیٹا؟ دانش وسیم. اوکے. اچھا بیٹا last time we people were talking about why 21st amendment was being made
and we started to talk about that Pakistan, because of the war against terrorism, was passing through extraordinary environment, extraordinary circumstances. So, in order to deal with the extraordinary circumstances, extraordinary laws were required, and extraordinary laws were being made by government of Pakistan in order to eradicate the phenomena of terrorism from Pakistan. And ये चीज़ें हमने we started to talk in my last class. Pakistan Protection of Pakistan Act was being made by the Parliament of Pakistan in somewhere in July 2014. As I have already told you that Pakistan was passing through some extraordinary circumstances. So in order to deal with the extraordinary circumstances, extraordinary laws were required. So extraordinary laws were being made by the government of Pakistan to deal with the phenomena of terrorism, because whatever the law was existing in Pakistan, that was not having the compatibility to deal with the nature of the crime. The terrorism was basically considered the highest form of crime in Pakistan. So whatever the laws were existing, they were of ordinary in nature. Some laws were existing to deal with the murder issues, kidnapping, extortion, rape, flan. These sort of things laws were there. But when terrorism started to happen, earlier, as I have already told you, that half of the nation was divided on the very issue of whether we should own it or not own it. So sooner or later, whatsoever, the consensus started to build. And APS attack, the atrocity being committed by the Taliban, basically not Taliban as such, as I have already told you, that Tehreek-e-Taliban Pakistan was not basically the offshoot of the Taliban section that was found in Afghanistan. Tehreek-e-Taliban Pakistan was basically a loose organization of multiple criminal gangs. So more than 55 to 60 different groups, they were working under the umbrella organization of Tehreek-e-Taliban Pakistan. And most of the groups, they were not having any connection with the religion. They were not having any connection with any identity. Rather, they were criminals, basically. That's why when the external forces, they were coming up with the bribe, with the economic aid to these groups, they were fulfilling the agenda of the external powers in Pakistan. That's why the law and order situation in Pakistan was becoming very, very bad. One thing. So since the half of the nation was divided on the very issue, the war against terrorism should be owned or not. But before APS attack, the nation was divided. And some people, they were of the opinion that these are the good people, we should not go against them. They were disillusioned people, basically. They were very disillusioned people. They were not having the very idea that these people, they are being financed, they are being trained, they are being equipped, they are being monitored, even they are being provided help in Pakistan in order to commit the atrocities and terrorist activities all over the country. So those people, they were being disillusioned people. And when the APS attack happened, because of the APS attack, what happened in Pakistan, that somehow, sooner or later, the consensus started to build in Pakistan. So the consensus came in the shape that whatsoever is happening in Pakistan, any person who is going to raise weapon against Pakistan would be considered terrorist. That person should not be tolerated. That person should be wiped out. Usko khatam kar dena chahiye. So these were the things anyway, and these sort of laws started to be made, by the government of Pakistan. And in this frame of mind, the very important thing which happened was Protection of Pakistan Ordinance. Protection of Pakistan Ordinance that was being passed in July somewhere in 2014 was having many points. Different sections were involved in it. And different points were being discussed. But most important points that I have already discussed with you, let me recap them, and then we would be making a connection with the 21st Amendment. Remember one, guys, as I told you that extraordinary laws were being made. So there was a threat that if the government is coming up with the act, or the government is coming up with some ordinances in order to deal with it, and then the people
the liberal people, the so-called liberal people more specifically, they will be considering it the black laws, and they will be deeming it the violation of basic human rights. So in order to protect the protection, constitutional protection to these laws, amendment was required. That's why protection of Pakistan ordinance was given constitutional protection in the 21st Amendment. Though 21st Amendment was also having further provisions, but protection of Pakistan ordinance was given the constitutional protection so that it might not be presented in the court of law, and the court of law, while interpreting the constitution of Pakistan, may not declare it unconstitutional, may not declare it illegal. This was the frame of mind because of which the protection of Pakistan ordinance was being made, and later on it was being provided protection, constitutional protection, so that it may not be challenged in the court of law. अच्छा, ये सारी बातें अब मैं जल्दी जल्दी से बताता हूँ. As I told you that terrorism was extraordinary circumstances, extraordinary phenomena. To deal with the extraordinary phenomena, when we wanted to have, the government was in the dire need of having some extraordinary laws, because existing laws, they were not having any compatibility to deal with this crime. That's why new laws were being made. So as I have already told you, and we have discussed in detail, the 7-8 important points of protection of Pakistan ordinance. Let me recap them, and then we will be moving forward. Preventive detention, you are already having a better idea what is meant by preventive detention. Just for the sake of an idea, if the law enforcement agencies, they believe that according to their intelligence reports, if they believe that this person is belonging to any band outfit, this person or any person is belonging to any band outfit or terrorist organization, is involved in, or he or she is involved in the anti-state activities, then the law enforcement agencies of Pakistan, they were allowed to arrest this person in order to prevent him or her from committing further terrorist activities. इसको कहते हैं preventive, as the name is suggesting, preventing him or her from committing further terrorist activities, preventive detention. ये ordinary law क्या था? If the law enforcement agencies, they were supposed to arrest any person, they were supposed to go first to the court in order to get the warrant, and then the person was to be arrested. ऐसे arrest किया जाता था, लेकिन इसमें नहीं है. इसमें नहीं कि अगर intelligence reports के मुताबिक there is a dead sure that some person is belonging to any terrorist activities or terrorist band organization के साथ उसका ताल्लुक है, that person should be taken into preventive detention from stopping him the person or her from committing further atrocities or terrorist activities. Okay, उसके बाद search without warrant. And general circumstances, what happen, agar law enforcement agencies, they are of the opinion there is some particular house in particular locality, and that is full of from the terrorist and some people, some unwanted activities they are going on over there. ये intelligence reports होती हैं और महल्ले के लोग ये अमूमन बताते हैं, और फिर intelligence agencies उसको सर्च भी करती हैं. Then अगर उनको ये पता चलता है some unwanted activities are happening in this house, तो पहले क्या होता था, in order to go for the search in any house or anything, the law enforcement agencies, they were supposed to take the search warrant from the court. And as I have already told you that the terrorists, they were the part of our society, and they were having their linkages. In the within the every section of society. So they used to get the permission that a search warrant is being issued against them. So इससे पहले कि पुलिस उस पर हमला करती, they used to run away, वो उससे भाग जाते थे. और this is how जो इंटेलिजेंस की बुनियाद के पर जो इतना वो किया जाता था, वो नाकाम हो जाते थे, ऑपरेशंस नाकाम हो जाते थे. फिर हुआ क्या? The court, under the Protection of Pakistan Act, the law enforcement agencies, they were allowed that if they are having any suspicion regarding any house or in particular territory whatsoever, they were allowed to go over there and search it. और इस तरीके से बेशुमार केसेस हुए, बेशुमार, कि उसके ऊपर सर्च वारंट के उन्होंने हमला किया, उधर से फिर उनका मुकाबला शुरू हो गया, और फिर जो लोग थे इस तरीके से. लेकिन ये एक अच्छी चीज थी. दूसरी बात ये थी, as I have already told you that पहले है preventive detention, stopping any suspect from committing further terrorist activities. Second is the going for the search without warrant. Second thing थी, पहले मैंने जैसे कि आपको बताया, पाकिस्तान के अंदर hundreds of suicidal attacks happened
because law enforcement agencies they were not allowed if any suspect was coming up. अच्छा, ये जो सुसाइडल जो लोग होते थे उनकी एक खास बॉडी लैंग्वेज होती है, रंग उनका बड़ा पेल होता था, होंठ मसलसल उनके हिल रहे होते थे, बाजू उनके स्वेलन होते थे क्योंकि जैकेट पहनी होती थी और खास किस्म के आउटफिट के अंदर वो होता था, जॉगर वगैरह पहने होते थे और बड़ी स्टिफ नेक के साथ वो जा रहा होता था, वेरी स्टिफ नेक के साथ. दिस वाज द रीडिंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज whenever there would be any suicidal यानी कि जो अटैकर आएगा सुसाइड अटैकर आएगा, उसके खास बॉडी लैंग्वेज होती है. लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दे वर हैविंग दिस रीडिंग बट दे वर नॉट अलाउड टू डिसएंगेज दैट पर्सन. उस बंदे को रोकना उसकी इजाजत नहीं थी क्योंकि लॉ कहता था यू कैन नॉट किल एनी पर्सन विदाउट एविडेंस. अब हियर इट वाज अलाउड दैट the BPS officer having the scale of 15 was allowed to give one warning to the suspect. अगर सस्पेक्ट उनके पास आ रहा है, पहले क्या होता था वो बेचारे रोकते रहते थे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वो आके अपने आप को फाड़ देता था और सारे लोग शहीद हो जाते थे उसके अंदर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग होते थे. सुसाइडल ने तो मरना होता था. अच्छा, तो ये दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये इंपॉर्टेंट इस तरह है कि पुलिस ऑफिसर विद द स्केल ऑफ 15 वाज अलाउड टू गिव फर्स्ट वार्निंग इफ वन पर्सन, उन्होंने रीड कर लिया कि ये सस्पेक्ट इज कमिंग, उसको कहते थे स्टॉप देयर, एक खास पॉइंट के ऊपर. वो अगर नहीं रुकता तो दूसरी वार्निंग देते, फिर भी नहीं रुकता तो तीसरी वार्निंग देते, तीसरी वार्निंग में अगर नहीं रुका तो उसको डिसएंगेज कर देते, उसको न्यूट्रलाइज कर देते थे, यानी फायर करके उसको मार देते थे. अच्छा, अब ये इस तरीके से पहले पाकिस्तान के अंदर हंड्रेड ऑफ केसेस वर हैपनिंग लाइक दिस, हंड्रेड्स ऑफ केसेस, एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दे वर नॉट अलाउड कि उसको एंगेज करते, आप उसको पकड़ के उसको न्यूट्रलाइज करते, नहीं, वो अपने आप को फोड़ देता था. क्यों? और लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सुसाइडल अटैक्स खत्म हो गए, बल्कि ना होने के बराबर हो गए. पहले डेली पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पे सुसाइडल अटैक हो रहा था. फिर ये इनके जो बंदे जो लोग थे, ये जब इनको पता चला ऐसा कानून बन गया और उनको दूर से हिट कर दिया जाएगा तो उनके सारे चीजें खराब, फिर उन्होंने नए तरीके ढूंढने शुरू लग दी, गाड़ी के नीचे बम लगाना शुरू कर दिया, मोटरसाइकिल के ऊपर बम लगाना शुरू कर दिया, कचरा का जो ये जो जहाँ पे कचरा पड़ा होता था वहां पे छुपा देते थे, इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो गए. उसके बाद जीआईटी वुड बी मेड. अगर अच्छा याद रखिएगा, अब इसके ऊपर ये नहीं है कि उनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पीपल दे वर गिवन द फुल फ्रीडम टू किल एनीबॉडी इफ इवन दे थॉट दैट दिस पर्सन इज बिलोंगिंग. नहीं, उसका बाकायदा क्राइटेरिया है. और इन ऑर्डर टू स्टॉप द मिस यूज ऑफ दिस थिंग, तो फिर इंटरनल इंक्वायरी भी बिठाई जाती थी. अगर कोई सस्पेक्ट आ जाते हैं कि इसको मारा गया, जैसे कराची के अंदर हो रहे हैं, बलोचिस्तान के अंदर भी कुछ केसेस हुए हैं जिसके अंदर वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों ने जस्ट कंसिडरिंग कि ये पर्सन वाज इन्वॉल्व इन एनी अनवांटेड एक्टिविटी और ही वाज बिलोंगिंग ऑन दिस सस्पेशन, तो उसको मार दिया गया. तो उसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी होती हैं. और ऐसी बात नहीं है कि किसी के नहीं, बहुत सारी इंक्वायरीज हुई हैं, आप लोगों को पता है, वो लोग फिर बाद में अरेस्ट भी हुए हैं. अब आप अच्छा, उसके बाद जीआईटी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन, अगला पॉइंट था ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम. ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन, 1 गजेटेड पुलिस ऑफिसर और 2 ऑफिसर्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस वगैरह से जीआईटी बनाई जाएगी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम. ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का मतलब क्या है कि अगर कोई एक्टिविटी हो रही है और उसके ऊपर कोई इंक्वायरी बिठानी है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ पुलिस ही है, पुलिस के लोग, इंटेलिजेंस के लोग और अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग मिलकर एक जीआईटी बनाएंगे और वो इंक्वायर करेंगे और इम्पार्शियल इंक्वायरी होगी और जो साबित हुआ उसके अंदर उसको फिर डील किया जाएगा. उसके बाद अगर सस्पेक्ट को पकड़ लिया गया, कोई एक सस्पेक्ट को पकड़ लिया और उसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी 60 डेज के लिए अपने डिटेंशन में रख सकते हैं. But they would be taking the 4 remands from the court. Yani after every 15 days, that person would be presented before the court of law, and the court will, or वो law enforcement agencies कहेंगे we still need this person in order to complete our inquiry, तो वो फिर उसको रिमांड दे देंगे. अच्छा, ये अब अदालत के ऊपर है कि वो फिजिकल रिमांड देती है या जुडिशियल रिमांड देती है, व्हाटसोएवर इन्वेस्टिगेशन किस तरह का, ये कोर्ट ऑफ लॉ के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि 3rd डिग्री के साथ बंदे को न्यूट्रलाइज कर दिया गया एंड दैट पर्सन इज नॉट बीइंग प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, और ये इस तरीके से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. ये एक बनाया गया था. और उसके बाद और 4 रिमांड्स ईच आफ्टर, यानी कि 1 रिमांड आफ्टर 15 डेज, टोटल 4 रिमांड्स. दिस इज हाउ दिस एनी सस्पेक्ट कुड बी टेकन इनटू कस्टडी फॉर 60 डेज. उसके बाद
burden of proof upon the accused, very important thing. Burden of یہ جو burden of proof ہے is upon the accused. For instance, if law enforcement agency they believe کہ 1 to 3% they are suspect اور ان کو انہوں نے preventive detention میں رکھ دیا for 60 days, تو اگر تو وہ بندے انوسینٹ ہوئے تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ میرے بینک بیلنس ہیں, یہ میرے خاندان کے تعلقات ہیں, یہ میرا بزنس ہے, یہ میرا سوشل سیٹ اپ ہے, یہ میرے professional linkages ہیں. Go and inquire and you will not be finding anything. Clean people could never be arrested, mind it. Clean people could never be arrested without any reason. Clean people کو کوئی بندہ arrest نہیں کر سکتا. اور یہ آواز آ رہی Yes, sir. ہیلو, آواز آ رہی ہے بچے؟ Yes, sir. آواز آ رہی ہے. رائٹ. تو کیا ہے, میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو جو کلین آدمی ہوتا ہے نا, وہ سارا کچھ اپنا اوپن کر کے دے دیتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ مائی لائف از ایٹ اسٹیک اور اس کی فیملی افیکٹ ہوگی اور بڑا زیادہ ہوگا. لیکن جو کرمنل ہوتا ہے نا, وہ اپنی کوئی چیزیں بھی اوپن نہیں کرتا, اور وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ چیز کروں گا تو یہ ہوگا, یہ چیز کرو. لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہوتی ہیں جب انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو پتا چل جاتا ہے. تو اس طریقے سے دوسری بڑی امپورٹنٹ بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کیا, سیل فون ڈیٹا. اس سے پہلے پاکستان کے اندر اگر کسی موبائل کے اندر اگر آپ لوگوں نے ایسے بنائی کوئی چیز, ایسی چیز بنائی کہ کوئی ویڈیو بنا لی ہے اور کوئی ریکارڈنگ ہو گئی ہے, یہ کال ڈیٹا ریکارڈ ہو گیا, یا کسی نے آپ کو تھریٹننگ ٹیکسٹ کر دی ہیں, تو اس کو ہماری ایگزسٹنگ لا سسٹم کے اندر دے ول ناٹ بینگ کنسیڈر ایز این ایویڈینس. ان کو ایویڈینس کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا تھا. ہیئر اب ویڈیو بنی ہوئی ہے, اس کا فرانسک ہوا ہے, ویڈیو بنی ہے, اس کا فرانسک ہوا ہے, اور فرانسک میں پتا ہو گیا کہ یہ اوریجنل ویڈیو ہے. لیکن لا واز آف دا opinion that since I am just coming to your point, لا اگر اس کو پتا چل گیا کہ یہ اوریجنل بنی ہوئی ہے, ٹیکسٹ کیا ہوا ہے کسی نے, یا تھریٹننگ ریکارڈنگ ہوئی ہے, تو اس کو ہمارا ایگزسٹنگ لا کے اندر کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا. اللہ کی ہیئر پروٹیکشن آف پاکستان میں سیل فون ڈیٹا واز آلسو ناؤ فرام ناؤ آنورڈ واز بینگ کنسیڈرڈ ایز این. اس کے بعد شیڈیولز وغیرہ سے. اچھا, اب یاد رکھیے گا, apparently if you see these laws, if they are being implemented in normal circumstances, if these laws they are implemented in normal circumstances, many people they would be coming up with the idea that these laws they are against the Constitution of Pakistan. These laws they are against the basic fundamental rights of people. These laws are black laws, and the state is misusing its power. Remember one thing, these laws were not being included in the 1973 Constitution forever. They were included for 2 years. 2 years کے لیے ان کو implement کیا, and if it was required that now we have further to go for the extension in these laws, then again the parliament was supposed to approve these laws. They are not being made a permanent part of 1973 Constitution. Earlier they were imposed for 2 years, and still war against terrorism was going on, and again the parliament provided further extension for 2 years and then 2 years, but now these laws they are not being approved. ابھی تک approve نہیں ہو پائے. تو یہ they are not the permanent laws, یہ بات یاد رکھنا ہے. اور یہ اچھا, اب ان کا کام کیا تھا. اب یہ اگر یہ جو ایکٹ بناتے ہیں, فار انسٹنس اگر یہ اس کو بنایا گیا, اگر آرڈیننس ہوتا, یہ گورنمنٹ کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتا, then that executive order or ordinance might have been challenged in the court of law. Court of law کے اندر وہ چیلنج ہو سکتا تھا, اور عدالت while interpreting the constitution might declare them کہ these are the black laws against the spirit of the fundamental rights, against the laws وغیرہ وغیرہ. تو اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. This should not be exercised in Pakistan. In order to protect and provide the constitutional protection, 21st Amendment was being made. یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے. 21st Amendment was being produced. اچھا, 21st Amendment کے اندر نیشنل ایکشن پلان, یہ جو آگے ہم پڑھیں اگلا ٹاپک ہمارا آ رہا ہے نیشنل ایکشن پلان, وہ اور یہ اور دوسری طرح کے جو لاء تھے, these laws were being provided the constitutional protection for 2 years, so that they might not be challenged in the court of law. یہ بات کریں گے. اچھا, تو یہ بیسیکلی یہ جو لاس تھے, I know in normal circumstances they were might be declared as bad laws,
बट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, जैसा कि पूरी दुनिया में होता है वहां पे होता है। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव क्या थे 21st अमेंडमेंट के? कमिंग टू द 21st अमेंडमेंट, फर्स्ट था to make laws in order to protect the state and nation from the terrorist activities. Second thing, to give the protection to of the constitution to these amendments in the laws, to protect the whole country and the citizens of Pakistan from the terrorist groups. Up to ensure the speedy trial of the criminals, to ensure the speedy trials of criminals. 35,000 बंदा अरेस्ट हुआ, हमारी सारी कोर्टों ने छोड़ दिया हमको, हमारी कोर्ट्स छोड़ देती थी। 100 में से 1 या 1.5 बंदा कन्विक्ट होता था, बाकी सारे भाग जाते थे। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने शहादतें दे देकर उनको गिरफ्तार किया होता है, ऑपरेशंस किए होते हैं। हर ऑपरेशन में 1-2 बंदे जख्मी, 2-3-4 बंदे शहीद हो जाते थे, फिर वो जाके क्रिमिनल पकड़े जाते थे। उन क्रिमिनल्स को कोर्ट ऑफ लॉ में जब प्रेजेंट किया जाता था तो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर वो लॉ ही नहीं थे जिनके जरिए उनको ट्रायल किया जाता। तो विटनेस को भी मार देते थे, ये जो वकील को भी मार देते थे, जज को भी थ्रेट करते थे, एविडेंस भी कोई नहीं होता था, और दे यूज्ड टू गेट फ्री हैंड, वो भाग जाते, मतलब आजाद यानी हमारी अदालतों से फ्री होके भाग जाते थे। अच्छा, फिर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस के अंदर भी करप्शन बढ़ी थी। जो पुलिस के जो लोग इन्वॉल्व होते थे इन चीज़ों के अंदर, वो भी इंसान है, उनको कोई बंदा ब्राइब कर सकता है, उनको कोई बंदा थ्रेट कर सकता है, तो वो जो इन्वेस्टिगेटिव पर्सन होता है वो केस की कोई भी शक्ल दे सकता है। तो जब उसको थ्रेट किया जाता था या ब्राइब किया जाता था पुलिस के अंदर या दूसरे, तो वो क्या होता था, वो शक्ल ही चेंज कर देता था और एक्चुअल एविडेंस ही खत्म हो जाता था। तो इस चीज को खत्म करना था, मिलिट्री कोर्ट्स बनानी है ताकि विटनेस को, ताकि जज को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, प्रोसिक्यूटर को, जजेस को थ्रेट से महफूज रखा जाए, और इस तरीके से। अच्छा, अब इसके खिलाफ बहुत सारे आई हैं। अब मैं अब मेकिंग ए कनेक्शन के 21st अमेंडमेंट वाज बीइंग मेड। अच्छा, याद रखिएगा ये जो 21st अमेंडमेंट 16 दिसंबर 2014 को, 16 दिसंबर 2014 को हुआ एपीएस की एट्रॉसिटी, एंड देन 7 जनवरी 2015 को, लेस देन 1 मंथ, 1 महीने से भी कम है, 21st अमेंडमेंट वाज बीइंग मेड। एंड 21st अमेंडमेंट वाज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। 3 हिस्सों के अंदर 21st अमेंडमेंट वाज कंपोज ऑफ। पहला था उसका जो 21st अमेंडमेंट का जो पहला हिस्सा था, उसको कहते हैं सनसेट क्लास। सनसेट क्लास यानी कि एनी लॉ which will cease to exist after a specific time period, इसको कहते हैं सनसेट लॉ। यानी कि 21st amendment would be implemented and after a specific time frame it will get expire automatically. कोई गवर्नमेंट उसको एक्सपायर नहीं करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनली इट वुड गेट एक्सपायर। इसको कहते हैं एज द सन राइजेस एंड आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम इट गोज डाउन, इट सेट्स, वो खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो इज द केस विद दिस लॉ। एनी लॉ which will cease to exist after a particular time, after a specific time, fixed time, उसको sunset clause कहते हैं। तो it was decided that 21st amendment के अंदर these extraordinary laws they are being included just in order to deal with the terrorist activities, one thing. And after 2 years, when law enforcement agencies they will be performing their duties and they will be helping the state to eradicate the phenomenon of terrorism. And by 2 years the situation will be normalized and then it would automatically be finished, taken out of the constitution, it will go, यानी expire हो जाएगा। तो ये 2 साल के लिए था। और फिर it was उसके अंदर लिखा गया था कि if the state believes कि further these laws are required further, then again process बताया था कि parliament would be passing these laws for further 2 years, parliament would be providing extension to these laws for further 2 years। इस तरीके से from 15 to 17, 17 to 19 ये 2 तरह की एक्सटेंशन हो चुकी हुई हैं, और अभी तक तीसरी मरतबा की एक्सटेंशन कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पाकिस्तान में एज सच वो मुश्किलात पेश आ रही हैं। अच्छा, आगे चलते हैं गुलाम। इसको पहला पार्ट फर्स्ट वाज रिलेटेड टू दी सनसेट क्लास, एंड द सेकंड थिंग या इसमें जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, दैट वाज रिलेटेड टू दी दैट टेररिज्म एंड रिलीजन। टेररिज्म एंड रिलीजन, टेररिज्म और रिलीजन को मिला दिया गया एक जगह पर कि whatever the terrorism is happening in Pakistan, it is just because of the
मिस यूज ऑफ रिलीजन एंड रिलीजन इज काजिंग टेररिज्म, ये चीज़ इसके अंदर बना दिया गया पार्ट 1 के अंदर। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हो रहा था उसमें सेकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी इन्वॉल्व था, जैसा कि कराची के अंदर टेररिज्म हो रहा था। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, दे वर हैविंग देयर ओन मिलिटेंट विंग्स, बहुत पावरफुल और मिलिटेंट विंग्स थे इनके अपने, एंड दे यूज्ड टू इन्वॉल्व इन गैंग वार्स। इन कराची होता था, इन केपीके के अंदर होता था। सो ये जो बात कहा कहना कि जस्ट terrorism is happening just because of the religion, that was being criticized by the large section of society, religious political parties, even the people. तो फिर बाद में ये सोचा गया था कि टेररिस्ट को ओपन कर दिया जाए, टेररिज्म के फिनोमेना की जो इंटरप्रिटेशन है, डेफिनेशन, उसको ओपन कर दिया जाए। और फिर ये इस बात पे कंसेंसस आया, एनी पर्सन नो मैटर हाउ जो unduly for political purposes will be trying to terrorize the people, even for political purpose, economic purpose or whatsoever, तो उसको भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। उसकी डेफिनेशन ये डालेगी, बाद में फिर इसकी डेफिनेशन भी आएगी। अच्छा मैं बेटा, मुझे पता है आप दो लोग क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, मैं आता हूँ आप लोगों के पास। उसके बाद ये पहले मैं एक दफ़ा पढ़ा लूँ, फिर उसके बाद मैं बात करूँगा आपसे। उसके बाद आर्टिकल 175, अच्छा सेकंड पार्ट इज रिलेटेड टू द आर्टिकल 175। ये जो एग्जिस्टिंग, जितना एग्जिस्टिंग हमारा पॉलिटिकल ये जो जुडिशियल सिस्टम है, that is basically constituted as per the provisions of article 175, 175 के तहत, आर्टिकल जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन 175 आर्टिकल के तहत our existing judicial system is existing. It is having its power under this article, it is having its function under this article, it is ensuring the freedom of judiciary under this article. So this article is very comprehensive, it is composed of subsections as well. कुछ दूसरे भी आर्टिकल्स हैं, क्लासेस, सब क्लासेस, सेक्शन, सब सेक्शंस भी हैं, जिसमें जुडिशियल, द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, द पावर ऑफ जुडिशरी, द रिसोर्सेज ऑफ जुडिशरी, द ऑटोनॉमी ऑफ जुडिशरी, वही सारी चीजें उसके अंदर डिस्कस की गई हैं। अच्छा, तो यहाँ ये कहा गया, इसके अंदर ये कहा गया कि our present judicial system, ये जो हमारी जो जुडिशरी है, it will not be dealing with any case related to the terrorist activities and every, इसको बताया, ये बता, पहले से क्या होता, कोई भी क्राइम होता तो वो क्राइम का कहाँ लेके जाते थे, एग्जिस्टिंग कोर्ट्स के अंदर लेके जाते थे। अब क्या कहा गया कि दिस एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम विल नॉट बी डीलिंग विद द टेररिस्ट केसेस, द केसेस ऑफ टेररिज्म से डील नहीं करेंगे वो, बल्कि दीज केसेस दे विल बी सेंट बैक टू हुम, टू द मिलिट्री कोर्ट्स, और मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई इसके लिए। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये आया कि whatever the legislation is being done by the government of Pakistan, it is undermining the independence of judiciary. ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन कर रही है। तो इससे क्या होगा कि इससे पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इट वाज a necessary step, and the government at large and the parliament at large, they had decided that we need to have some laws which can help us to eradicate the phenomenon of terrorism. तो ये कड़वा घोंट भी पिया गया, इस कड़वे घोंट को पिया गया। उसके बाद तीसरा चीज़ है, जो तीसरी जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, that is related to the changes in Army Act of 1952. अब जुडिशरी के जो हमारी आर्मी एक्ट को चेंज किया गया। मैं पहले बताता हूँ आपको, आर्मी एक्ट ऑफ 1952 को चेंज किया गया और उसको भी बताया गया कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के साथ किस तरीके से डील कर सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट ऑफ 1953 उसको भी बताया गया। ये जो लॉज हैं ये इनके ऊपर भी लगाए गए एप्लीकेबल। ये जो कौन से लॉज जो मैंने आपको पहले बताएं, दोज लॉज दे आर आल्सो एप्लीकेबल इनटू द आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस ऑफ 1961 में। तो ये जो एप्लीकेशन लगाई, अच्छा पहले क्या होता था, मिलिट्री के अफेयर्स या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जैसा कि ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है हमारी, इनके जो जो क्राइम्स होते थे ये खुद ही डील करते थे। अब कुछ लोग ऐसे पता चला कि कुछ लोग इसके अंदर भी इन्वॉल्व हैं, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटीज़ की वजह से, रिलीजियस एफिलिएशन की वजह से या आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फौज छोड़कर भाग गए और एयरफोर्स छोड़ के भाग गए और टेररिस्ट के साथ मिल गए। तो क्योंकि वो पर्सनल किसका था, आइडेंटिटी उसकी जो मेन सर्विंग जो था, तो फिर इन लॉस को भी इफेक्टिव बनाया गया कि आप फिर इस ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए ये इख्तियारत करें।
اور جو بھی اور پھر اگر ان کے اندر بھی لوگ اگر پائے جاتے ہیں تو ان کو بھی دیز لاس کے ساتھ انہی قوانین کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ڈسٹنکشن نہیں بنائی گئی کہ آرمی کے لوگ بچ کے بھاگ جائیں گے, نیوی کے لوگ بچ کے بھاگ جائیں گے, ایئر فورس کے لوگ بچ کے بھاگ جائیں گے اور ان کو کوئی ڈیل کرنے والا نہیں ہوگا, یا صرف وہ ان کی خاص عدالتیں ڈیل کریں گے. نہیں, اب بتایا گیا کہ کوئی بھی بندہ, چاہے وہ سویلین ہے چاہے وہ ملٹری ہے, جس کسی نے بھی اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھایا ہے وہ یونیفارملی ڈیل ہوگا انڈر دی لا, اور ان لاس کے ساتھ اس کو ڈیل کیا جائے گا. اچھا آگے چلتے ہیں. تو یہ جو کچھ ایشوز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے, پی پی او ہم نے ڈسکس کیا, اور پھر اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دیا گیا. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں 21 میں امینڈمنٹ لے کر آئے. 21 جو امینڈمنٹ تھی اس کے 3 حصے تھے. فرسٹ تھنگ از نون ایز سنسٹ کلاس, اور دوسرا حصہ از نون آرٹیکل 175 کے اندر جو چینجز کی گئیں. And then these laws, they were also being applicable on Army Act, Navy Act and Air Force Act. Even Protection of Pakistan Ordinance کو بھی protection دی گئی, اور ان کو fully اجازت دی گئی ہے کہ deal with the phenomena of terrorism in your own way. اور ان کو اور constitution اس legal framework کے اندر رہتے ہوئے they were given the full freedom to deal with these terrorists in their own way. جی بیٹا question 2-3 question بچے پوچھنا چاہ رہے تھے, پھر آگے چلتے ہیں. 2 بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا بیٹا. سر ہمارے ریلیٹیو کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہے کہ وہ مطلب ایجنسی والوں نے انہیں اریسٹ کر لیا, تو اس کے بعد 1 منتھ کے بعد اس کو مطلب فری کر دیا. اس سے انویسٹیگیشن ہوئی کہ مطلب سرور میں بام بلاسٹ ہوا تھا, تو اس نے مطلب دوسری طرف سے اس کو کال کی کہ مبارکباد ہو کہ آپ کا کام ہو گیا ہے. تو اصل میں نا وہ اس کو اس چیز کی مبارکباد دے رہا تھا کہ اس نے سر بھینس لی ہوئی تھی نا, تو اس بندے کو کہا ہوا تھا کہ بھینس لینی ہے میرے لیے, تو اسی کی مبارکباد تھی. تو مطلب ایجنسی والوں نے جو جس طرح ٹریس کیا تو اس کو اریسٹ کر لیا. تو اس کے بعد سر اس کو 1 منتھ کے بعد فری کر دیا. ہاں بہت زبردست. اب دیکھ لیں. اچھا یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات 2-3 بات عماد میں آ رہا ہوں آپ کے. یہ فہیم حیدر کہہ رہا تھا, یاد رکھیے گا بیٹا میری بات سنیں گا. بلوچستان کے اندر جیسا کہ میں نے اکثر مثالیں دیا کرتا ہوں, پاکستان کے اندر 23 کروڑ لوگ ہیں, اور ان 23 کروڑ لوگوں میں سے ہر بندہ انڈر انویسٹیگیشن نہیں ہے, ہر بندہ انڈر سرویلنس نہیں ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز they are very professional in their work, they are very very hard working and they know how to do their job. They are not going to arrest anybody without any reason, and if the person is being arrested, یہ جیسے ابھی حیدر بتا رہا تھا کہ if any person is being arrested under some suspicion, then after the investigation if the person is proven innocent تو اس کو ریلیز کر دیا گیا. یہ صرف فہیم کے ریلیٹیو کے ساتھ نہیں ہے, میرے سامنے کوئی 20 ایگزامپلس ہیں جن کو میں لٹرلی خود جانتا تھا, اینڈ دوز 20 ڈزنس آف ایگزامپلس ہیں. کچھ تو میرے اپنے اسٹوڈنٹس تھے جو کہ ریلیجیس ٹینڈنسی رکھتے تھے, اور ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اریسٹ کیا, اور 2-3 مہینے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ان کو باقاعدہ فری کر دیا گیا, اور کوئی ٹارچر نہیں کیا گیا. باقاعدہ وہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ مجھے کہتا کہ انہوں نے مجھے اریسٹ کیا تو باقاعدہ صبح اٹھتے ہم نماز پڑھتے اور باقاعدہ کھانا ٹائم پہ ملتا, کوئی ٹارچر نہیں ہوا, انویسٹیگیشن ہوتی تھی, اور انہیں مجھے کہا گیا تھا کہ اپنے جو بات کرنی ہے صحیح کرنی ہے. جو انوسنٹ بندہ ہے وہ کیوں بات چھپائے گا, وہ اس سے ہر چیز کو کنیکشن دیتے, اس کو جا کے وہ ویریفائی کرتے ہوئے چیزیں کریکٹ ہوتی گئیں. جب 15 سے 20 دن میرے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی ہے, اور 15 سے 20 دن کے اندر میں نے ساری چیزیں بتا دیں, کوئی چیز ثابت نہیں ہوا, کوئی کنیکشن ثابت نہیں ہوا. انہوں نے جس طریقے سے مجھے اٹھایا تھا, جو میرے بٹوے کے اندر, جو میرے پرس کے اندر پیسے تھے وہ بھی ایز اٹ از مجھے واپس کیے, موٹر سائیکل سمیت مجھے اٹھا لیا تھا انہوں نے, موٹر سائیکل بھی مجھے واپس کیا, ہر چیز واپس کر کے مجھے فری کر دیا. This is how law enforcement agencies they work. And if law enforcement agencies they get the idea that there are some particular persons who are having their connection with the band outfits, then they never compromise. Because nothing is above the state. State is everything. State can do whatever state is willing to do. Why state is willing to do? Because state is supposed to provide the protection to the lives of the people.
अब मिसिंग पर्सन का बड़ा इशू चल रहा है पाकिस्तान के अंदर. मैं समझता हूँ इनमें से कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं, लेकिन ज़्यादातर जेन्युइन इश्यूज नहीं हैं. कुछ लोग अपने आइडियोलॉजिकल चीज़ों की वजह से दे आर बीइंग रिक्रूटेड बाय बैंड आउटफिट्स. कुछ लोग अपने एडवेंचर की वजह से बैंड आउटफिट्स के अंदर शामिल हो गए. कुछ लोगों को जनाब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो उनके साथ मिलकर इन ऑर्डर टू गेट मनी, पावर एंड लस्ट फॉर जो भी कुछ चीज़ें थी, और उसके ऊपर बीबीसी ने रिपोर्ट बनाई है. अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर एक बंदे, 2-3 बंदे पकड़े गए थे. वहाँ पे एक बैंड आउटफिट्स के लोगों ने जनूबी पंजाब से बंदे भर्ती किए और उनको लेके गए और अफगानिस्तान में वहाँ पे ट्रेनिंग दी, और वहाँ पे उनको पोर्ट्रे किया गया कि अफगानिस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ पे दहरिया रहते हैं, ईथिस रहते हैं. आपने उन लोगों के साथ मिलकर, उनकी अपने फंडिंग थी, वो वहाँ पे जाके लड़ रहे हैं, उनको पैसा, उनके जो बॉस हैं उनको पैसा मिलता था, वो इन बच्चों को यूज़ कर रहे हैं. और ऐसे लोग भी जो घरों से भाग चुके हैं, उनका भी नाम मिसिंग लिस्ट में है. जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मारे गए, उनका नाम भी मिसिंग लिस्ट के अंदर है. जिन लोगों को वाकई ही अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने पकड़ा है, उनमें से ज़्यादातर जो 3-3.5 हज़ार बंदा पिछले 1.5 साल के अंदर रिलीज़ हुआ है, तो जो नहीं रिलीज हो रहे उसके ऊपर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दे आर हैविंग देयर die hard conviction that these people they are established criminals, established terrorists हैं, और इनको हमने नहीं छोड़ना. तो this is how the things they are going on. लेकिन पाकिस्तान के 2-3 इदारे हैं जिसकी वजह से पूरी अमेरिका, CIA, इंटेलिजेंस एजेंसीज की स्टडीज हैं कि इस इदारे को कमज़ोर कर दिया जाए, इस इदारे के ऊपर लोगों का ट्रस्ट ख़त्म कर दिया जाए, इसको जनाब कमज़ोर कर दिया जाए, लोग इसके साथ ना मिलें, तो ये ऑटोमेटिकली दिस इंस्टीट्यूशन वुड बी फ्लॉप्ड एंड द पाकिस्तान, द होल कंट्री वुड बी टेकन ओवर. ये अमेरिका के 2-3 प्रेसिडेंट्स ने ओपनली कहा हुआ, जस्ट गूगल इट एंड यू विल बी फाइंडिंग दी. अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर्स ने कहा हुआ कि पाकिस्तान के प्रोटेक्शन इज ओनली बीइंग डन बाय द वन इंस्टीट्यूशन एंड द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसी से. अदरवाइज इनको ख़त्म कर दो. इनको अब जैसे अजीबो गरीब किस्म के नारे लगे कि इसके पीछे दहशतगर्दी, इसके पीछे दहशतगर्दी, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है. जब गर्दनें कटती थी, जब लोगों के 200, 300 लोग मरते थे, तब ये लोग कहाँ थे? तब इनको नहीं पता चलता था कि ये क्या कर रहे हैं. और फिर बाद में इन लोगों को अब एहसास. अब क्या हुआ, मैंने पहले भी अपने लेक्चर में ये बात करने की थी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है कि पूरे के पूरे इलाके को साफ करना, टेररिस्ट साफ करना. टेररिस्ट ने साफ किया, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको साफ किया. अब लोग डिस्प्लेस हुए. ये जो लोग डिस्प्लेस हुए, अपने घर, इनके घर तबाह हुए, इनके कारोबार तबाह हुए, इनके फैमिली मेंबर्स इफेक्ट हुए. इन लोगों के लिए तो बाकायदा ये क़यामत सुगरा थी जब ये अपने घरों को छोड़ रहे थे, अपने कारोबारों को छोड़ रहे थे. तो ये जाके डिस्प्लेस हुए, इंटरनली डिस्प्लेस हुए, और मिलियंस की तादाद में पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जाके बसे या ये कैंपों में जाके रहना शुरू. अब ये जिम्मेदारी किसकी थी? स्टेट की जिम्मेदारी सी थी. पॉलिटिकल आपकी जो लीडरशिप गवर्नमेंट थी उसकी जिम्मेदारी थी कि इनके घरों को आबाद करते, इनको कारोबार की अपॉर्चुनिटीज वैसे ही प्रोवाइड करके देते. वो बेचारे 10-10, 15-15 सालों से खैमों में रह रहे हैं. अब उनके अंदर ये रिजेंटमेंट आना, इट इज़ वेरी नेचुरल. उनके अंदर ये बातें आना, इट इज़ वेरी नेचुरल. वो स्टेट के खिलाफ बातें करते हैं तो वो बातें सही करते हैं, क्योंकि रियासत के जो सियासी इदारे हैं उन्होंने अपनी वो जिम्मेदारियां कबूल नहीं की कि उनको वापस उनके घरों में लेके जाते. इस वजह से पाकिस्तान में अब ये जो मूवमेंट बड़ी मशहूर हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, क्योंकि उसकी मूवमेंट के अंदर कोई 12-13 के करीब जो इम्पोर्टेंट डिमांड्स थे, वो चाहे उनके प्रेशर की वजह से या गवर्नमेंट की रियलाइजेशन की वजह से वो चीज़ें पूरी होना शुरू हुई, और आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीक अपने दम तोड़ रही है. लेकिन उन्होंने नारे क्या लगाए, उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान के अंदर जो 5th जनरेशन वारफेयर के जरिए पाकिस्तान की जो इडियोलॉजी है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन की जो सैंक्टिटी है, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो क्वेश्चन किया जा रहा है, उस अब इन्होंने किया. और फिर बाद में फिर उनको पकड़ना पड़ा, और मैंने इनको देखा. एक ख़ास किस्म की मेंटालिटी के लोग हैं जिनके लिंकेजेस हैं. ये जो लोग बड़े, इनके जो लीडर्स बने, 12-13 लीडर जो ऊपर बैठे होते हैं, उनमें से 7 से 10 लोगों के एस्टेब्लिश लिंकेजेस हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल. लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पता है, उनको कह रहे हैं ठीक है करो, हम पूरा नेटवर्क उसी वक्त उखाड़ेंगे जब हमने चाहा. वो ऐसे ही होगा और ऐसे होना है, आप लोग देखिएगा, टाइम इज़ वेरी क्लोज. लेकिन उनकी डिमांड्स अब पूरी होती जा रही हैं. आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह की तहरीकें भी ख़त्म हो जाएंगी. याद रखिएगा, मैं फिर उसी बात पे आता हूँ. इदारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मेंटेन करना, पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की हैं. उन्होंने कुर्बानियाँ दी, शहादतें ली, इदारों को क्लियर किया टेररिज्म से. जिन लोगों ने स्टेट के खिलाफ हथियार नहीं उठाए, स्टेट ने उनके खिलाफ काम नहीं किया.
जिन लोगों ने स्टेट के खिलाफ हथियार उठाए, स्टेट ने उनको नहीं छोड़ा। दो बातें। तीसरी बात यह है कि ये जो हमारे दोस्त अहबाब, हमारे रिलेटिव्स, हमारे जानने वाले जो डिस्प्लेस हुए थे अपने घरों से, उनके कारोबारों से, ये रियासत की जिम्मेदारी थी, स्टेट की जिम्मेदारी थी कि उनके लाखों लोगों को घर आबाद करके देते, उनको उसी तरीके से मार्केट आबाद करके देते ताकि उनका कारोबार होता। वो उनकी ज़िंदगी, तो वो बेचारे इतने अच्छे लोग थे, वो सारे मुतासिर हो गए और फाका कशी के ऊपर मजबूर हो गए थे। इन लोगों ने हथियार ही उठाने और क्या नहीं उठाने। तो जो रियासत के ये जो गवर्नमेंट थी, पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 2008 के बाद 13 तक, फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई और लाखों लोग बेचारे इनको देखते रहे। सैलाब आए, तूफान आए, बारिशें आई, सर्दी पड़ी, धूप पड़ी, वो बेचारे उन्हीं टेंटों में रहने पे मजबूर हुए और उनके दरमियान ये जो हेट्रेड स्टेट और उसके इदारों के खिलाफ आई, तो इस तरह के जो नारे लगे। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेट होती जा रही हैं, तो इस तरह के स्लोगन्स भी ख़त्म हो जाए। लेकिन हमें याद रखिएगा, किसी भी हम व्हाट वी सी दैट्स व्हाट वी बिलीव, लेकिन व्हाट वी सी could also be deceiving as well। ये बात याद रखना है, क्योंकि खास एंगल के साथ when the information is being portrayed, और ये जो अनब्राइडल्ड सोशल मीडिया है जिसके अंदर मिस इंफॉर्मेशन और हाफ इंफॉर्मेशन को जब एक खास अंदाज में पोर्ट्रे किया जाता है, दिस इज व्हाट इज ब्रेन वॉशिंग। ये हमारे लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, हमारे आइडियाज़ को, और हमें अपने अपने इदारों के खिलाफ, हमें अपने मुल्क के खिलाफ उभार रहे हैं। और फिर दीज आर वेरी फ्यू पीपल बट दे आर गेटिंग इंटरनेशनल कवरेज। एंड इसी चीज से आप लोगों को बहैसियत स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वी हैव टू लर्न एंड फाइंड कि व्हाई दिस एजेंडा इज बीइंग सेट, व्हाई अ फ्यू पीपल दे आर बीइंग पोर्ट्रेड एज इफ द होल वर्ल्ड इज बीइंग थ्रेटन्ड बाय पाकिस्तान। द होल वर्ल्ड, द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान, दे आर किलिंग एवरीबॉडी without making any distinction. The government law enforcement agencies, they are involved in the ethnic cleansing। एथनिक क्लिनजिंग के अंदर क्या, यानी जेनोसाइड, पश्तूनों की जेनोसाइड हो रही है, बलोचों की जेनोसाइड हो रही है। और जो पश्तून लोग हैं, जो पश्तून बलोच हैं, मैंने आपको पहले डाइसेक्ट करके बताया हुआ है कि दीज आर वेरी फ्यू पीपल बट दे आर गेटिंग BBC कवरेज, CNN कवरेज, फॉक्स न्यूज कवरेज, अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर डिस्कशंस हो रही हैं, बिकॉज दे गॉट देयर ओन एजेंडा। दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग द whenever अमेरिका के बारे में मशहूर है, whenever America is willing to talk about anything, America is always in the need of some issue to talk about, और उस with reference to their national security agenda वो देखते हैं। इमाद ने हाथ खड़ा किया। इमाद बेटा क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम सर। हाँ सर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 175 सर, उसमें सर इन लोगों ने 4 सीरियल नंबर दिए थे, 6, 7, 8 एंड 9, सब पार्ट 3। सर इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? और सर इसी आर्टिकल के अंदर सर टू प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट भी है ना? मेरी बात सुने। देखिए, आर्टिकल 175 जो है, दैट इज रिलेटेड टू द पाकिस्तान जुडिशरी, इट्स वर्किंग, इट्स पावर एंड फंक्शन इन इट्स ऑटोनॉमी, सिंपल। क्यों ये इस आर्टिकल को न्यूट्रलाइज किया गया और सिंपल अंदाज में लिखा गया है कि any case related to terrorism will not be dealt by the existing judicial system। उसको कहा गया है कि you will not be dealing, इसका ये जो पावर था to deal with every issue happening in Pakistan, either it is of civil nature or criminal in nature, वो उससे इम्यून खत्म कर दिया गया, उससे ये पावर ले ली गई। और यही वजह से ये सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज आई इसके ऊपर वो ये थी कि अगर जुडिशरी को उसके काम करने से रोका जाएगा तो द ऑटोनॉमी ऑफ जुडिशरी, द फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, द रूल ऑफ लॉ वुड बी इफेक्टेड इन पाकिस्तान। तो ये सबसे बड़ा एक कंसर्न था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये ज़रूरी था। और फिर आपको पता है मिलिट्री कोर्ट्स बनी है और फिर उन्होंने केसेस को डील किया और वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब देखें आप कितने आराम से रह रहे हैं। एक ज़माना था सरेआब रोड के ऊपर कोयटा के अंदर, आप रोड के अंदर झाड़ियाँ उग गई थी वहाँ पे, मतलब झाड़ियाँ वहीं पे उगती हैं ना जहाँ पे कोई ट्रैफिक आना जाना बंद हो जाए। किसी ज़माने में ये सिविक सेंटर होता था और खैर अभी भी चीज़ें वहाँ पे बहाल हो रही हैं। और सो वाज द केस विद द ट्राइबल एरियाज, वहाँ पे नो गो एरियाज बने हुए थे, नोबॉडी वाज हैविंग द डेयर टू गो ओवर देयर। और लेकिन अब हालात स्मूथ हो रहे हैं, अब लोग फ्रीली मूव कर रहे हैं, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हो रही। ये किस वजह से हुआ?
ये आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के कामयाब ऑपरेशंस और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कानून बनाने की वजह से कि जो इनकी सर्विसेज के मुताबिक कंपैटिबल हो गए और उन्होंने मिल के काम किया और ये आज हम पीसफुल पाकिस्तान रखते हैं। लेकिन क्या कहा जा रहा है, एक खास किस्म के स्लोगन्स लगा के इन चीज़ों का हमें समझना है। 5th जनरेशन वारफेयर को आप लोगों ने समझना है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी किसी को कहा था कि आप लोग 5th जनरेशन वारफेयर के ऊपर कहें कि हाउ इट इज़ पोजिंग अ थ्रेट टू पाकिस्तान and what kind of modalities, methods, procedures they are being adopted by the enemies of state to dismantle, to disregard the law enforcement agencies, how they are distorting the image of Pakistan. जी साद फरीद। सर जब आप ये वर्ड यूज करते हैं लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी, तो इसमें एफसी के अलावा और कौन कौन सी एजेंसी आ जाती है मतलब पाकिस्तान के अंदर से वैसे इंटेलिजेंस तो बेशुमार किस्म की हैं, पुलिस सब भी में इसके अंदर है। हाँ, सब में इसको कहता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में सारी एजेंसीज आती हैं, पुलिस भी आती है, फौज भी आती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आती हैं, एफसी भी आती है, पैरामिलिट्री भी आती है, हर तरह के लोग इसमें शामिल हैं। ये कंपोजिट वर्ड है। जी मात बेटा। सर क्या इस एक्ट को द प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2014 का नाम भी दे सकते हैं ना? प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट जो था 2014 जुलाई में जो पास हुआ था, उसको एज इट इज इंक्लूड किया गया इन दी 21st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देने के लिए। ओके सर, एज इट, यानी जो भी लॉज बनाए गए थे उसको प्रोटेक्ट किया गया इसके तहत। जो स्ट्रक्चर है उसका 3 हिस्सों में है, लेकिन जो उसके फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर ये सारे जो लॉज बनाए थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया। अच्छा बच्चों, और कोई क्वेश्चन प्लीज? अच्छा बेटा, अगला हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने शुरू करना है। अभी तक अब उसका मैं थोड़ा सा प्रियम्बल इस तरीके से बना दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान, इट वाज कंपोज ऑफ 20 पॉइंट्स। नेशनल एक्शन प्लान वाज कंपोज ऑफ 20 पॉइंट्स। अभी तक द अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट and the approach of law enforcement agencies was just focusing on one point: to deal with them, to deal with these terrorists through military operations. military operation के साथ डील करना है इनको, और ये काफ़ी हद तक इलाकों को कामयाब पाक करने में, क्लीन करने में कामयाब हुए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। लेकिन इनकी जो रूट्स थी, दी कॉजेस जो थे, उनको डील करने का सिर्फ मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं था। फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाई गई जिसके अंदर पॉलिटिकल, जिसमें इकोनॉमिक, जिसमें मिलिट्री, जिसमें जनाब आपके सोशल, कल्चरल, हर तरह के पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया। मीडिया को कैसे देखना है, इसी के तहत पॉलिटिकल की मैं 2-3 मिसालें आपको दे देता हूँ। बलोचिस्तान रिकन्सिलिएशन प्रोसेस शुरू हुआ सिक्योरिटी एडवाइजर के, और बेशुमार लोग जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए थे, बेशुमार लोग जो पहाड़ों पर चढ़ गए थे, उनको नेशनल स्ट्रीम में लेकर आए, उन्होंने हथियार फेंके, पाकिस्तान का झंडा उठाया, और फिर ये पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन है। और उनके फिर ड्यू सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स को एक्नॉलेज करना। और इस तरीके से फाटा के अंदर आप देखें कि उसको कहा गया था, ये नेशनल एक्शन प्लान के अंदर डिस्कस किया गया था कि फाटा को या तो सूबा बनाया जाएगा, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेकर आनी चाहिए, या इसको मर्ज किया जाएगा, और जो वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे उन्होंने क्या करना है। तो ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थी। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई हैं। फिर पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम को रिफॉर्म करना है, जिसके ज़रिए जो सिंपथाइज़र हैं, फाइनेंसर हैं, जो सपोर्टर्स हैं, ये जो इख्तियारात ये जो यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के सिस्टम की वीकनेसेस, इसको रिमूव करना है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की कि these people, they are continuously propagating their ideas. They got their own radio system, they got their own transmission system, they got own their publication system, they got their own, so hate based material को रोका गया पाकिस्तान के हर जगह से, उनको मना किया गया कि इस तरह का कोई प्रोपोगेटिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए, और बेशुमार पॉइंट्स हैं। तो ये जो पॉइंट सारे के सारे बनाए गए हैं नेशनल एक्शन प्लान के अंदर, इसके बेसिकली काम ये था कि एक कंप्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाए, कंप्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाए कि इसकी चीज़ों को सोसाइटी के से हमेशा के लिए अप्रूव कर दिया जाए। डिस्टिंक्शन क्या,
इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, सिंपल। या तो आप स्टेट के साथ हैं या आप स्टेट के खिलाफ हैं। स्टेट के साथ का मतलब ये है कि आप स्टेट के खिलाफ वेपन्स नहीं उठा रहे, स्टेट की रिकनसाइल कर रहे हैं, स्टेट के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहे, स्टेट के एनिमीज को मदद नहीं कर रहे। अगेंस्ट का मतलब है यू आर इन्वॉल्व इन कॉन्स्पिरेसीज, यू आर इन्वॉल्व इन दी कॉन्फ्लिक्ट्स विद द स्टेट एंड देन स्टेट विल नॉट बी टॉलरेटिंग, सिंपल फार्मूला। इमाद ने फिर हाथ खड़ा किया हुआ। जी बेटा इमाद। सर अगर जो बलूचिस्तान में जो हमारे पठान और बलोच वालों जो गन उठाए हुए हैं जस्ट बिकॉज उनका नारा यही है कि हमें बेसिक राइट नहीं मिल रहे, तो उसको हम क्या टेररिस्ट का नाम दे सकते हैं? नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक, गलत बात की है, बट बिल्कुल उनकी जो बात है वो आई कुछ और गॉट ही है। आई गॉट इट, मैंने समझ लिया। देखो इमाद, ये जो जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं उनको हम क्यों टेररिस्ट कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जो बंदा हथियार उठाएगा, पहाड़ों पे चढ़ेगा, उनको टेररिस्ट कहेंगे ना, बाकी लोगों को तो टेररिस्ट नहीं कहेंगे हम। सर बेसिक राइट्स के लिए लोगों ने गन्स उठाई हुई है। अच्छा ठीक है, तो उनको तरीका बेसिक क्या है? अच्छा, इसका मतलब ये तो देखें, दुनिया के किसी भी कानून के लिए, कानून के तहत भी आप स्टेट के खिलाफ नहीं जा सकते। आप इफ यू वांट टू चेंज द लॉ, बड़ा जबरदस्त फ्रेज है, बिकम अ लॉ। जैसा आप कहते हैं, सब कहते हैं, और फिर सिस्टम का हिस्सा बने और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए काम करें आप, बजाय के वेपन्स उठाएं और जो टेररिस्ट लोग हैं उनके हाथों में खेलें और रियासत के इदारों के ऊपर हमले करें और सबुटाज करें, एम्बुश करें और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों और जो इंस्टॉलेशन हैं उसको तबाह बर्बाद करें, रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करें, पहाड़ों पे चढ़कर अमेरिका को अपना बाप बोलें, इंडिया को के साथ जाके सिटीजनशिप लें, वहाँ से पैसा लेकर यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करें और इनोसेंट लोगों को मारें, जो लोग नहीं चाहते उनको भी मारें, जो लोग चाहते हैं उनको साथ मिला के रियासत के खिलाफ बगावत करें। तो ये कहीं भी दुनिया के किसी भी कानून के तहत ये नहीं है। रियासत को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। रियासत का ये काम है कि वो यहाँ के रहने वाले लोगों को बेसिक फंडामेंटल राइट्स, उनकी बेसिक कम्युनिटीज़ ऑफ लाइफ को प्रोवाइड करें। और इसके लिए ये बलूचिस्तान के जो हालात हैं 90 के हालात से बहुत डिफरेंट है। अब तो बलूचिस्तान का कोयटा के अंदर आप जाएं कि आपको दुनिया भर का हर ब्रांड नज़र आता है वहाँ पे। मतलब क्या है? सोशल एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग, economic activities are happening, cultural activities have started to happen. There was a time when then the rate of the government was not maintained in the 70% of Balochistan. Now the people, they change their mindset. Now they are becoming a part of national streams. Now they are joining the state agenda. Now they are joining, they are working, they are educating their people, their kids, and now they are getting the educations, and this is how they are becoming a part of the system. और मैं 3-4 ऐसे DCS को जानता हूँ, 2 DCS के पास इतने इख्तियारात नहीं होते और असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास इतने इख्तियारात नहीं होते, लेकिन they were the son of soil, they were belonging from the Makran coastal, they were belonging from the central Balochistan, even Pashtun territory, and they worked, they went there in their territories, and they created the basic facilities for their people, and whatever the districts they were under their control, they made a difference. Whatever the powers they were available, what does that mean? They made a difference का मतलब क्या है? They have created a change where change is what you make a comparison between the previous thing and the new thing. If the things were started to happen and things were happening over there and they happened there, they created, they used. So I used to say to my students from Balochistan, from KPK, from Gilgit-Baltistan, to come and educate themselves, उनको अपने करें और become a part of the system, और फिर अपने सिस्टम के लिए चेंज करें, rather than raising weapons for no reason. ये नहीं है। रियासत नाकाम हुई है 50 साल में, 60 सालों में, लेकिन रियासत को नाकाम इन्हीं लोगों ने किया। ये जो रियासत ने हमेशा फंडिंग दी, पैसा दिया, लेकिन इनके कुछ खास लोग जो उधर गवर्नमेंट में आते थे वो खाते रहे, और लोगों को उन्होंने अपने इलाकों के अंदर स्कूल नहीं बनाने दिए, कॉलेजेस नहीं बनाने दिए, हॉस्पिटल्स नहीं बनाने दिए, ताकि इन लोगों को इग्नोरेंस के क्लचेस के अंदर रखा जाए, इनको हमेशा स्लेवरी के शक्ल्स के अंदर बांध के रखा जाए और इन लोगों को आज़ादी। लेकिन अब अवेयरनेस आ रही है, मीडिया की वजह से लोग ब्रेक फ्री हो रहे हैं। यही जो मरी कबीले के जो लोग थे, इन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीनों के ऊपर अपने ख़ानदानों में बांट दी और लोग सारे भाग गए, और वो बेचारे जाके सिंध में सेटल हो गए, वो जाके सेटल हो गए, पंजाब में सेटल हो गए, KPK में सेटल हो गए। फॉर व्हाट? इन ऑर्डर टू सिक्योर देमसेल्फ,
from the clutches of their slavery. और ये चेंज हो रही है और यही लोग सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं and they are bringing change. अजमल खान बेटा. सर दारे बुक्टी से जो गैस निकलता है सर तो वो बलूचिस्तान से ही निकलता है सर. अगर दारे बुक्टी में ही गैस नहीं है तो सर अगर वो पहाड़ों पर चलते हैं सर तो उसको हम लोग कैसे टेररिस्ट कह सकते हैं, कैसे दहशतगर्द कह सकते हैं? तो वो तो अपने राइट्स के लिए खड़े हैं सर. बड़ी अच्छी बात की आपने. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि 52 कॉन्स्टिट्यूशन है सर, जी तो आर्टिकल है सर. जी कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि 70% जो रेशियो है रिसोर्सेज में प्रोविंस का हिस्सा है और 30% सेंट्रल गवर्नमेंट में लेके जाना है. ये जो बातें हैं इसके पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसकी वजह से ये सारा जो नैरेटिव अजमल खान ने अभी मुझे बताया और जो इमादुद्दीन ने जो नैरेटिव अडॉप्ट किया हुआ ये आज नहीं बना. ये गुज़िश्ता 40-50 साल की जो स्टेट की नेग्लिजेंस है उसकी वजह से ये नैरेटिव बना है. लेकिन आफ्टर 2007 onward now Baloch people they got more powers, they got their more rights, they got more resources, financial resources, they got everything. Ab there is no excuse that the money is not given to them, there is no excuse that power is not given to them, there is no excuse that nothing is happening for them. Now what they have to do that they have to become a part. They got money, they got resources, they got powers. Now they have to do what they have to do it. पैसा वापस भेजने के बजाय लगाएं आप लोगों के ऊपर और काम करें. और आपकी अजमल की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर डेरा भुट्टे के अंदर गैस नहीं होगी, कि हमारा नैरेटिव ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि 53-54 के अंदर गैस निकली थी, कोयटा में नहीं पहुंची, कराची में पहुंच गई थी. तो ये स्टेट की नेग्लिजेंस है बाय एवरी क्राइटेरिया, इसको नहीं होना चाहिए था. और जहाँ से गैस निकल रही है वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए. लेकिन अजमल खान ने ये जो बात की है ये अब बात ख़त्म हो गई है. ऐसी बात नहीं है. अब उस लोकेलिटी के लोगों को जो मेरा अपना स्टूडेंट्स हैं भुट्टी कबीले के जो कि डेरा भुट्टी में रहते हैं, उनको वो लकड़ियाँ नहीं जलाते, वो ओपले नहीं जलाते, वो गैस इस्तेमाल करते हैं. उसकी लोकेलिटी में आ गई है. लेकिन देर से आई है. इसके अंदर स्टेट की नेग्लिजेंस शामिल है. स्टेट को ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसी वजह से ये नैरेटिव बिल्ड हो गया और ये नैरेटिव बिल्ड होने की वजह से हालात ख़राब हुए हैं. लेकिन अब क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी. लेकिन अगेन हेयर कांस्टेंट विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी. हमें अपने इख्तियारात को देखना है, हमने सारे मामलात को देखना. ओनली देन वी कैन क्रिएट अ पीसफुल प्रॉस्परस कंट्री. और अगर वेपन्स लेकर खड़े होंगे तो किसी का फ़ायदा नहीं उठाना. रिकनसाइल विद द स्टेट इज़ देयर. एंड अब हमारा 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देयर इज अ मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. ये याद रखना है आप लोगों ने. मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज गिवन टू एवरी प्रोविंस. मैक्सिमम, सो मच सो द सेंटर इज नोवेयर नाउ. सेंटर कहीं नहीं है. अब सिर्फ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है. उसके पास बेपनाह पैसा है, बेपनाह रिसोर्सेज हैं. वो जो पावर जो मैं आपको पहले बताता रहा कि इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं था, 56 में कुछ नहीं था, 62 में कुछ नहीं था. नाउ 1973 constitution because of these amendments is heavily tilted towards what? Towards the provincial autonomy. अब कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमारे पास राइट नहीं है, पावर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है. अब नहीं, अब हालात ठीक हो जाएंगे. और आई थैंक यू मच गाइस. और अटेंडेंस के मामले में अपने आप को ठीक करें. वेरी फ्यू सेशंस लेफ्ट विद अस और इसी के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को देखना है. I hope you people are working on the topic of your choice related to the national security of Pakistan. You have to submit it on 16th of Feb. 16th of Feb को उसके लिए हम अच्छा ये 10-18 पे सबमिट कराना है आप लोगों ने. ये सर एक क्वेश्चन था सर. ये एक सर रिसर्च पेपर है या एक प्रोजेक्ट? सर रिसर्च पेपर का पैटर्न बहुत डिफरेंट है. मैम ने दोनों का नाम लिया था कि छोड़ दें. बट आई एम सेइंग वो उनको एड्रेस कर लेंगे. मैंने कहा था राइट अ क्वेश्चन. Yes, sir. Simple question. Write a simple question and try to answer that question. That's it. Whether not in a research paper, right, sir? Whether you name it a research article, whether you name it a report, you name it an extended article, whatsoever. Okay, getting sir. Thank you so much, sir. 100% freedom you got. Do whatever you are willing, but produce it in your own words. Write a simple answer and try to find the answer of that question. This is what I'm demanding. It can be a national issue or national security issue. There's a huge gap, sir. No gap. Every national issue is having security implication. Good. Okay, sir. Okay, sir. No gap. Simple any issue related to the national security. Balochistan related to national security. Water
related to national security. Afghanistan issue related to national security. Banned outfit, national security. Indian threat, national security. American involvement, national security. Getting No, sir. whatsoever, anything related to नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान. सिक्योरिटी क्या है? जिससे हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले. ऐसा इशू जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ को काबू खत्म करने में, वो हमारे लिए इशू है, उसको डील करना है. Try to answer and find the answer of that. No matter you name it, a research article, research report, or extended article, just write whatever you are on. लेकिन write in your own words. Simple. I thank you much. See you inshallah in my next immediate class.